Hi everyone, this is Yugansh, and today's podcast we are going to talk about memes. Yes, you heard that right. I have Pranjal Poddar with me. He's a content creator, and not only that, he's actually making a life out of memes. Pranjal is into meme marketing, and this is the guy you always wanted to be, that is, to get paid to make memes. So, without further ado, let's deep dive into this conversation about meme marketing. Pranjal, welcome to the show. Thank you so much, Yugansh, for having me. And I make a meme. I make a living through memes. So very lucky to do that, and even excited to talk about it because I think even I have not internalized how I do this. So, we'll have fun. We'll have a nice conversation about it. Definitely. But Pranjal, you are an engineer, right? You have also done your M.Tech. So you are a master's in engineer एक तरीके से. So मतलब what I wanted to understand is क्या engineering और memes का कोई relation है? काफी काफी इनफैक्ट बिकॉज आई मीन इंजीनियरिंग में जाके तो तुमको अपना असली पैशन पता चलता है. दैट्स द नॉर्म इन आवर कंट्री. सो यू डू इंजीनियरिंग टू फाइंड आउट व्हाट एम आई गुड एट. सो मुझे भी इनफैक्ट इंजीनियरिंग में पता चला दैट आई एम काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंटेंट साइड ऑफ थिंग्स और टुवर्ड्स ह्यूमर रादर, थोड़ा फन वाला एरिया. And I mean that's the decision I took. This is what I want to be in. So even after completing MTech, while everyone was expectedly confused, कि this guy just did 5 years of something, and uske immediately he just wants to like discard all that 5 years and wants to go into something very new, which nobody knows and nothing. But then I was like, yeah, no point in thinking about this 2 years later, right? 2 years, so अभी से ही वो jump ले लेते हैं. होगा तो होगा, नहीं तो नहीं. Of course, I didn't get into meme marketing right after college. I did a copywriting job for a year almost, and उसके बाद I got into this. But it was something on my mind always. मतलब even if I was not doing a meme marketing job, I was still making memes on the side. So it's more like a passion. Now passion turned into a proper career. But right after college, right after your UG PG, you got into content creation. कहीं ना कहीं मतलब वो content वाली चीज़ वहीं से आ Yeah, चुकी थी. yeah, And yeah. ये कौन से year की बात होगी? 2019. So you've been into this for like 2-3 years. 2 years. 3 तो क्या ही. 2 years, 2 years. प्रांजल, Yeah, 2 years. मेरे को एक चीज़ पूछनी है. उससे पहले बिफोर आई जंप टू द क्वेश्चन, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, कुणाल शाह वाली. सो देयर इज वन मीम ऑफ योर्स व्हिच वेंट लाइक, मतलब क्या ही बोलूँ उसको, तो वायरल इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज. वो तो अलग ही ब्लास्ट हुआ था. आई सॉ, सो आई एम फॉलोइंग कुणाल शाह ऑन इंस्टाग्राम. मैंने देखा स्टोरी, मैंने कहा तो प्रांजल की मीम है यार, ये यहाँ कैसे पहुंच गई, उसका क्या सीन है यार, वो बताओ, वो कैसे क्या हुआ. वो स्टोरी यार, आई मीन आई पर्सनली हैड नो आइडिया. सो मैंने तो सुबह सी आई यूज अ शेड्यूलर, लाइक वी ऑल प्रोबेबली यूज. यस. मैंने डाल दिया था मीम. आई डिडंट सी, आई जस्ट ओपनड, मतलब नॉर्मल वर्किंग डे था. आई डिडंट रियली ओपन लिंक्डइन उस दिन दैट मच. बीच में आफ्टरनून में चेक किया था, जब देखा कि 2 घंटे में 1000 लाइक्स आ गए. आई रियलाइज ओके, दिस इज गोइंग टू ब्लो अप. सो बस उतना एक आइडिया हो गया था, बाकी मैंने और कुछ नहीं देखा. आई सॉ नथिंग. एंड देन शाम को आई सॉ माई ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप, एंड उसमें समवन हैड शेयर्ड दैट इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट कि लुक एट दिस गाय, मतलब इसके कौन, इसका मतलब हु इज गेट वैलिडेशन कहाँ से मिल रहा है देखो. दिस वाज द तो हम लाइक, मैं देखा, मेरा ना दिमाग खराब हो गया. आई वाज लाइक ओके, व्हाट इज दिस, मतलब हाउ इज दिस हैपनिंग. बिकॉज Kunal Shah se validation is like हमारा, it's almost like how Elon Musk is for memes for the West, what he does for memes, Kunal Shah is for us, I feel. In terms of memes, at least. I'm not comparing both of them. Yes, But in terms yes. of how much they like memes and post memes themselves on their profiles. So, of course, that felt like, even मैंने, मतलब मेरा ट्विटर का भी, if you see pinned, वही है. No matter मेरे को किसी और ट्वीट पे ज्यादा लाइक्स मिला होगा, बट मैं वही पिन करके रखा, बिकॉज इट्स अ नाइस थिंग. द मीम इज ऑल्सो, आई फील वेरी नाइस. इट्स वन ऑफ माई बेस्ट. एंड द कॉमेंट्स ऑल्सो यार, उस मीम्स पे एवरीवन वाज लाइक, यार द मीम वाज राइट कि रेज्यूमे थप थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, राइट? फ्रेशर रेज्यूमेस कैसे होते हैं. सो सबने उसपे मस्त कमेंट्स डाले थे, पता है कि थोड़ा MS ऑफिस, थोड़ा ये स्वाद अनुसार. तो लोग और ज्यादा खुद भी ऐड कर रहे थे, स्टिकिंग टू द होल संजीव कपूर थिंग. सब लोग स्वाद अनुसार ऐड कर रहे थे कमेंट. तो मुझे तो बहुत ही मजा आया.
But of course, the icing on the cake was Kunal sharing. वो मेमोरेबल था. I felt पहली बार कि कुछ तो बिग, समथिंग बिग हैपेंड. अदरवाइज इट वाज अभी तक स्टिल जस्ट गुड एंगेजमेंट ऑन लिंक्डइन. बट वो टाइम पे मुझे लगा ओके समथिंग एक थोड़ा नेक्स्ट स्टेप लिया मैंने. आई फेल्ट. एंड एक चीज़ है, जैसे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट, तो आई थिंक आपके जो सारे लिंक्डइन पे पोस्ट, मतलब लिंक्डइन पे मीम्स अगर की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज से बेटर एंगेजमेंट आता है ऑन मोस्ट ऑफ दी पोस्ट, राइट? तो बट ये जो कुणाल शाह वाला मीम, जो मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर मीम एक ब्लास्ट हुआ था, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं द थिंग विच यू आर ट्राइंग टू बिल्ड थ्रू लिंक्डइन इज योर पर्सनल ब्रांड, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक सडन राइज आया था, ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम? या डेफिनेटली. इनफैक्ट एक्चुअली कुणाल वो वाले मीम से एक पहले और एक दूसरा मीम था. दैट इज द वन विच काइंड ऑफ ब्लू. आई मीन दैट इज एक्चुअली द मीम जिस पे मेरे को अभी तक हाईएस्ट लाइक्स मिल चुका है. सो वो सबसे ज्यादा था. आई थिंक दैट वाज व्हेन इट काइंड ऑफ ब्लू एंड आई काइंड ऑफ रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ मीम्स ऑन लिंक्डइन थ्रू दैट. Because the thing was the difference between these two memes, that was Om Shanti Om का था कि when a recruiter from a शाहरुख dream खान वाला. company sends you a Yes. शाहरुख खान वाला. हाँ. So देखा. that blew up. That was like वो मेरे लिए kind of mind boggling था. But then I realized why, because that is relatable to even global audience. But ये वाला हिंदी dialogue था. So I think that's why I personally felt the second meme was more impressive, the Sanjeev Kapoor one. ये वाला थोड़ा होलसम था. ये वाला थोड़ा स्मार्ट वाला भी था, थोड़ा फनी वैसा भी था. तो बट बिग ब्रेक आई वुड से पहला वाला था, वेयर आई फेल्ट लाइक अगर मीम को ये मिल सकता है लिंक्डइन पे, देन आई रियलाइज्ड कि आई डोंट नीड टू लिसन टू दोस पीपल जो बस मतलब जस्ट रैंडमली आके बोल देते ना कि लिंक्डइन को फेसबुक बना रहे हो, लिंक्डइन को फेसबुक बना रहे हो. But I'm like, dude, I'm not sharing a meme on Taimur. I'm not sharing a meme on any political party. Right? I'm talking about corporate life. I'm talking about LinkedIn, things on LinkedIn. Yes. So that is my take on things. I mean, I decide to make funny things. I don't decide to make serious things. I respect those things, but I need to do what I like. Otherwise, मैं भी वही करूँ जो मेरा persona नहीं है, तो point ही है ना कुछ करने का. Makes no sense, correct. And also there's a difference between the kind of memes you see on LinkedIn versus the kind of memes you see on Twitter versus Instagram. तो वो एक माइंडसेट भी अलग होता है हमारा जब हम प्लेटफॉर्म पे होते हैं. तो फेसबुक वाला वॉरियर पर, मतलब मेरे को तो वॉरियर्स लगते हैं, कीबोर्ड पे बैठे बस टाइप करते रहते हैं, डोंट मेक इट फेसबुक. तो ठीक है, उनका भी एक टेम्पररी फेज है. आई बिलीव कहीं ना कहीं लोग लिंक्डइन को भी फेसबुक बना रहे हैं. सम पीपल आर डूइंग दैट, बट मोस्ट द पार्ट अभी भी लिंक्डइन ही है यार, और वो लिंक्डइन ही रहेगा. बिकॉज हम सेम लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सेम लोग हैं ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, बट एवरी टाइम वी आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वी हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड दिस इज हाउ एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज वर्किंग. Exactly. बट ये इनको Exactly. समझ I में mean, आता है. even I feel like, I mean, I'm much more. You will also agree कि Twitter पे we are so open. We are filter बहुत कम है. We speak a lot more openly because there is less. I feel some kind of more not responsibility थोड़ा in terms of कि क्या डाल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के डालना पड़ता है LinkedIn पे. और थोड़ा ज्यादा लैंग्वेज भी थोड़ा संभालना पड़ता है. ट्विटर पे तो मैं कुछ भी लैंग्वेज यूज करता हूँ, बट लिंक्डइन पे आई नीड टू बी थोड़ा अच्छे घर से आ रहा हूँ टाइप्स. तो बट दैट डिफरेंस इज देयर. वो खुद ही से आ जाता है. सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. आई मीन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. बट ठीक है, आई मीन आई पर्सनली फील कि वो जो परसेप्शन है लिंक्डइन का, जो लोग बोलते हैं लिंक्डइन फेसबुक बन रहा है, वो लोग का लिंक्डइन का परसेप्शन ही अलग है. They think it's something to sell pitches and get jobs. और कुछ है ही नहीं. I feel उनके लिए आगे. So they get offended. So if मैंने एक मीम बनाया था on people जो पहला मैसेज they send a connection request and the first thing they do is pitch. मुझे नहीं पसंद यार. फर्स्ट थिंग हाय बोलो ना, हेलो बोलो, जानो मेरे बारे में, करो ना पिच. मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट चीज में तुम भेज दिए पिच. और मे बी कनेक्शन रिक्वेस्ट ही पिच है, मतलब जो ये डालते हैं ना, नोट डालते हैं, उसी में पिच. तो उस पे भी लोग बोल रहे हैं अरे पिच नहीं करेंगे तो फिर लिंक्डइन क्यों है. मैंने बोला अरे भाई इंटरेक्शन है नेटवर्किंग के लिए पहले, उसके बाद करो ना पिच. पहले थोड़ा जान तो लो, हाय हेलो बोल लो. If you just come and pitch, like you don't know me, nothing, you don't even write hi Pranjal, you're like bas hi, it's an automated message, it's a copy paste. Then like why will I even bother about knowing your product or taking interest in buying it? Absolutely. It's common sense. Yes.
बट पीपल उसमें भी यार 2-3 लोग ऑफेंड हो गए थे कि यार लिंक्डइन पे आके पिच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. तो आई फील उनका ही पर्सपेक्टिव लिंक्डइन के बारे में कुछ तो अलग ही है. सो दे सी समथिंग डिफरेंट एंड दे थिंक ओ फेसबुक बन जा रहा है. अभी क्या करें, मतलब आई मीन दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? सो ठीक है, वो एक चीज दिमाग में है, ये वही लोग हैं जो अगर आप फेसबुक पे लाइक मैं अपना कंटेंट जो लिंक्डइन पे जाता है कभी कभी फेसबुक पे भी पुश कर देता हूँ, तो फेसबुक पे आके बोलेंगे फेसबुक को लिंक्डइन मत बनाओ. ये वही लोग हैं. ट्रू ऑल्सो ट्रू एक चीज आपने देखी होगी, सो दिस इज मतलब इसको वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हैं. एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं कौन चला रहा है, कि देर आर, वो नोट में ऐड करके भेजते हैं, देर आर अ फ्यू स्टार्टअप्स अवेलेबल फॉर फ्री टू गेट एक्वायर्ड. आया है ऐसा कुछ? यस ऑफ कोर्स. और आपने बोला मेरे को कि लोग लिखते हैं हाई प्रांजल भी नहीं लिखते, हाई लिख के नीचे पिच. मेरे पास तो एक मैसेज आया था अभी, आई वॉज रिक्रूटिंग, ये तो पिच भी नहीं था, मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर मल्टीपल पोजीशन, हाई श्रेया, और उसने पूरा अपना वो भेज दिया चिट्ठा. उसके बाद नीचे उसने युगांश लिख के स्टार करा हुआ है. मैंने कहा यार क्या ही रिप्लाई करना है इसको. मुझे भी अभी किसी ने भेजा था मेरा नाम हाय हाय मिश्का. मैं आई नो समवन मिश्का एंड आई वाज लाइक मिश्का को इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि मिश्का क्या हो रहा है यार तेरे वजह से मेरे को तेरे नाम से पिचेस आ रहा है यार. क्या मतलब आई तो मतलब रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करा, मतलब सीधा इधर आई लीव इट. आई डोंट रिजेक्ट यूजुअली, बट ऐसा आता है तो आई लिटरली टेक द एफर्ट टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बिकॉज इट्स आई मीन दिस इज बुलशिट यार. सिंपल एज Correct, absolutely. Pranjal, let's shift our gear towards a little bit of meme marketing अब. And now I understand what goes into that, I mean the psychology of a naughty mind, जो जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खुराफाती दिमाग. तो वो कहीं ना कहीं होगा पीछे, है ना, उसमें क्या होता है यार, क्या चलता है, कैसे आते हैं सारे आइडियाज. आई वांट टॉक अबाउट दैट. yeah, it's just constantly working. It's actually that it's never at rest. You are just constantly looking at things in a इसमें से कुछ निकाल सकते, इसमें से कुछ निकाल सकते, is can something be extract. So you know, we were just talking about that resume meme, right? And when I saw it worked, now my mind is constantly working, क्या resume की कुछ और elements में भी memes बना सकते हैं. And I made another one recently जो काफी चला. So now it gives me, you know, it gives me a direction कि okay, resume itself is like a subject जिसपे काफी memes बन सकते हैं. I mean, there are many elements that you can make fun of, right? It can be the length, it can be the whatever you include in it, right? Stuff like hobbies and stuff, singing, dancing, लोग डालते हैं ना ये सब. तो there are so many things. So it's all about कि कितना deep जा सकते हो, how many elements you can find in one thing. So that's how you do it for brands also in a way, that you see their product and उसका कितना elements में से तुम उसका क्या बना सकते हो. Can you relate one element about a product? For example, if a trimmer has इतना charging time और इतना time that उसका charge stays, you know, एक charge में suppose it will work for how many hours, right? So can you use that element or that thing about the product to make it something relatable to the audience? You can't make fun of it because if you're promoting the brand, you can't make fun. But you can make fun in a way, you can compare it with other brands because, you know, naughty mind in the sense you are also taking digs at other brands at times, right? With memes and stuff. So it's like that. It's like पूरा टाइम कितना डीप जा सकते हो, कितना एलिमेंट्स, एक चीज में कितना एलिमेंट्स ढूंढ सकते हो. एंड इट्स ऑलवेज वर्किंग इवन इफ यू आर नॉट डूइंग योर प्रॉपर जॉब. मोबाइल पे तो हो, यू आर कॉन्स्टेंटली रील पे कौन सा नया ट्रेंड आया, इसको मे बी कैसे यूज कर सकता हो किसी ब्रांड के लिए. You know, ऐसे स्ट्राइक होता रहता है. I mean, once you get into that zone, your mind just keeps working like that. So it's like this, and of course at the end of the day it's for your own fun also. अपने को भी किक मिलता है ना, कभी कुछ ऐसा आइडिया आ गया या ऐसा मीम बना दिया तो खुद को भी किक मिलता है और बनाने का मन करता है. तो खुद का भी मजा है और दूसरों को भी मजा आ रहा है, तो वेल एंड गुड. बट इसमें एक चीज़ है, जैसे आई एम श्योर कि कोई अगर बंदा रील बना रहा है, सो दिस पर्सन कैन फॉर श्योर टॉक अबाउट रील्स की क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन टू शूटिंग, और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सेम गोज विद एनी यूट्यूबर और लाइक आई कैन टॉक अबाउट लिंक्डइन. मैं बता सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे ये प्रोसेस फॉलो करके यू कैन एटलीस्ट हैव समथिंग, मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क विच यू कैन फॉलो, कि आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कंटेंट बनाना कैसे. बट फॉर समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंट, जैसे मैं हूँ,
मैं कंटेंट कर रहा हूँ बट आई एम नॉट इनटू मीम्स, राइट? तो मेरे को समझ आता है कि कंटेंट क्या है. इनफैक्ट मेरा दिमाग, जैसे इससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले की हमारी बात हो रही थी कि सड़क पे अगर कुत्ते भी लड़ रहे होंगे ना, मेरे को लगता है कि ये कंटेंट है. तो दिमाग उस हिसाब से चलने लगा कि हर चीज़ आपको कंटेंट ही दिखती है. आई थिंक वो सेम ही केस आपका होगा कि हर चीज़ कंटेंट ही दिखती है. मेरे लिए वो कंटेंट एक डिफरेंट फॉर्म में होता है, आपके लिए वो थोड़ा मीम फॉर्म में होता है, बस यही डिफरेंस है. बट मेरे को प्रोसेस समझना है कि लेट्स से इफ समवन वांट्स टू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई कि यार मेरे को मीम्स बनाने का ट्राई करना है, कि कैसे होता है, क्या होता है. सो उस प्रोसेस में क्या जाता है, मेरे को वो समझना है. See, the core emotion between that is relatability. This is the core emotion. When someone shares a meme on their Instagram story, वो क्या होता है? Essentially क्या होता है? It's basically them telling the world that whatever this meme is saying, it is me. It is my voice. It represents something about me. Right? So if it's making, if for example, if you share a meme on your Instagram story about you, for example, the meme is about a particular political party example, तो तुमने अगर उसको शेयर किया, you're essentially saying ना that मैं ऐसा मीम के थ्रू दिखा रहा हूँ मैं किसको सपोर्ट करता हूँ. मे बी I'm just taking a while. यस, हाँ, वो गलत तो एग्जाम्पल ले लिया, पॉलिटिकल. बस ठीक थोड़ा है. पॉलिटिकल ले लिया इसलिए बस, और आगे नहीं जाऊंगा मैं, और डीप आई वोंट डेल्व डीपर, बट हाँ जस्ट सेइंग कि essentially it's that only. So it's not actually so much about technicality, it's more about तुम्हारे साथ अगर कुछ situation हुआ, it's like comedy actually, it's like stand up comedy where तुम्हारे साथ एक situation हुआ, how you can make it, how you can frame it or convert it into a story, meme in this case, that makes it relatable to 100 others. So it's actually about just finding that balance. There is no framework as such. The framework is finding the right template, कौन सा dialogue एकदम fit बैठता है. So essentially क्या होता है? What are the elements of a meme? There is that copy, right? The situation that you're trying to describe, that when X does Y, whatever example, and then there is that meme, that dialogue, maybe a Mirzapur ka dialogue or whatever. So जितना ज्यादा फिट हो सकता है, जितना अच्छा फिट हो रहा है द डायलॉग टू दैट सिचुएशन, जितना इजी इट इज फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, एंड डिपेंड्स कहाँ का ऑडियंस ऑफ कोर्स. लाइक रेडिट पे अगर तुम जाके, मैं अगर अपने लिंक्डइन मीम्स रेडिट पे डालूंगा ना, तो पीपल विल किल मी, पीपल विल लाइक बैटर मी लिटरली, because Reddit audience is savage and they're dank. You make a joke about death also and they are like fine with it. They are so dank. But LinkedIn पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, right? So it's about audience and then how just about how well you match these things. Copy कितना अच्छा है, कितना crisp है, कितना relatable है. A lot of time copy इतना बड़ा लिख देते हैं, meme में चलता ही नहीं है. इतना बड़ा copy डालते ही नहीं है. Like 3-4 लाइन का caption, लोग अंदर जो copy होता है वही 3-4 लाइन का होता है, तो then it doesn't work. So and also sometimes also about who is in the template. For example, I personally feel, it's my own theory, that the one I was talking about, that meme Shah Rukh Khan Om Shanti Om wala, I personally feel because it's Shah Rukh's face, which literally everyone recognizes, even people out of India, it worked so much. I mean, compared to maybe if I had Paresh Rawal's face or someone. I mean, I'm talking because Paresh Rawal is a legendary figure in meme culture. So, like that. So it's about these little intricacies, and honestly saying, there is no theory to prove all this. It's totally upon the creator. Like, they took a chance. I just thought, okay, maybe Shah Rukh ka ye fit ho raha hai idhar. Later when the results came, later when I saw itna aaya, then I realized, then you internalize कि क्यों हुआ. Try to analyze, right? And because there is no analytics for a meme, there is nothing to really understand क्यों चला क्या चला. So तुम खुद ही internalize करके सोचते हो कि it's all about that emotion, right? So that's the difference between meme marketing and something like paid, I mean, the Google ads, Facebook ads. कि यहाँ पे human judgment is a lot more. यहाँ पे there is to a certain extent, and then a lot of things are in the algorithm's hand. It's like you do your best and then algorithm will learn. I mean, it learns, right? It adapts, it learns, and then it gives you your best results in your campaign. But यहाँ पे there is so much of human judgment and experience. Like abhi whatever has come, it hasn't come overnight. I have been posting memes for 3 months, 4 months on LinkedIn, but I've been making memes for at least 3-4 years now. So it hasn't come overnight. I mean, there has been a process of learning and कितना relatable बना सकते हो. So
Correct. And now, as we were talking about the human touch here, so I think any piece of content, be it a meme, picture, whatever video, right? So I think any piece of content goes viral just because of one factor. It the content has to be share worthy. अगर लोग शेयर करेंगे तो ही वो वायरल हो सकता है, और कोई नहीं है. एक चीज़ बोलता हूँ मैं हमेशा कंटेंट में, जनता जनार्दन यार. जनता ही डिसाइड करेगी कि ये चलेगा नहीं चलेगा. आप नहीं कर सकते, आप कुछ प्रेडिक्शंस लगा लो. देयर वर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे मेरे बिल्कुल. को फील आती थी कि यार ये सही है, अच्छा है, चलो हाँ ठीक है, कैन एक्सपेक्ट समथिंग. बट वो नहीं होता था. बट देन देयर वर डेज की रात को कुछ डाल के सो गए, सुबह देखा रही ये क्या हो गया, बाप रे. राइट. सो आई थिंक वो ह्यूमन ऑलवेज टच. ऑलवेज ये यस तो यस. ये क्रिएटर का लाइफ में ये होना ही है. हम जो सोचते हैं वो पता नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ. And you just never, you can, that's why you cannot predict virality. Anyone who says they can predict virality, they can say, someone can come and say, I can make content that has the potential to go viral if they're a really good creator. But they can, and nobody can really ever promise कि भाई ये जाएगा ही ऊपर. हो ही नहीं सकता. Because honestly saying, algorithms are unpredictable. काफी बार you feel like you posted something good and it was just not shown to enough people, right? Aisa, it was just a bad day in the office, you can say something like that, and then you decide to Yes. put down the post and then maybe repost a month later or something like that. So that's a decision you take. That's something else, something different. But yeah, there is no कोई guarantee नहीं है इस चीज का. And maybe that is the thing which drives us, right? Because अगर we find a formula every time, I'm sure we'll become lazy. I'm sure we'll take it for granted. But because we don't, that's why we are always like searching for it. We keep posting today because maybe a month down मुझे वो एक मिल जाएगा. I'll tell you something about LinkedIn only. Very petty maybe, but I'll share it. I have no problem in sharing it. कि I started last year May तक, and I was seeing people who started along with me. I started कि उनका ना एक दो पोस्ट तो थोड़ा 2-3 हज़ार लाइक्स, मतलब वो जो एक ब्रैकेट होता है ऑफ एंगेजमेंट, वहां तक पहुंच चुका था. ठीक है, मेरे को एक डिसेंट अबव एवरेज मेरे को मिल रहा था, लाइक यू वर सेइंग, बट इट नेवर टच्ड दैट हायर पीक्स. ऐसा वो माउंट एवरेस्ट वो Got सब it. पीक्स नहीं टच कर रहा था, हमेशा एक वैसा ही रहता था. एंड दैट वाज समथिंग एज अ क्रिएटर आई फेल्ट लाइक ये मैं कैसे कर सकता. आई फेल्ट लाइक मैं ना एक वॉल के पीछे अटक गया. आई फेल्ट. And I can tell you in fact कि September last year, September तक I had only one post which had crossed 1,000 likes on LinkedIn. I had only one. And I was used to talk with someone, जिसने मेरे साथ ही LinkedIn start किया था. And we used to always kind of bounce off each other ideas and stuff like that. And I used to tell him, I don't know what more I can do. But I just kept doing it because I was kind of searching for it, right? Call it vanity metric, but at least it kept me driven. कि यार करते रहना, I want to reach that, that whatever peak someday. And now वो फिर करते गया and then अचानक आने लगा. And now it's become almost, I don't want to brag, but now it's become almost a regular weekly thing where वो peak cross होता ही है. With 2-3 really good posts, वो peak cross होता ही है. And now it's not even a thought anymore. तो वही that thing keeps you driving. अभी जैसे even if some 2 memes have done exceedingly well, but I'm still like इससे भी आके जा सकता है. Can I make something even more relatable? और क्या हो सकता है. कुणाल शाह ने शेयर किया, अभी और बड़ा कोई भी शेयर कर सकता है. So recently, ट्विटर स्पेसेस में विजय शेखर is such a chill guy, right? अभी what if the goal is कि विजय शेखर कभी मेरा मीम शेयर करेगा. So something like that. आई थिंक दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर. लाइक आपके पास वैगनार है, आप चाहते हो यार मेरे पास अमीज आ जाए, अमीज है आप चाहते हो होंडा सिटी आ जाए, होंडा सिटी आप चाहते हो कोई और गाड़ी आ जाए. तो हर चीज, मतलब गाड़ी तो चलो Yeah, एग्जाम्पल हो yeah. गया, वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, आपको ऊपर ही जाना है यार, है ना. इनफैक्ट मेरे साथ भी ये था यार. आई एम Exactly. नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स हियर, बट मेरे को भी लगता था कि यार इसके पास इतनी एंगेजमेंट कैसे आ गई. बट फिर वो जब आने लगा तो पता चल गया कि चलो हाँ ठीक है, अब तो डेली का हो गया. फिर पता है, अब लगता है कि यार 18,000 अगर मेरा हाईएस्ट है तो मेरे को उससे ऊपर देखना है. तो धीरे, दिस इज हाउ यू ग्रो बेसिकली. अगर आप आगे देखोगे ही नहीं, ऊंचा देखोगे ही नहीं, तो आगे बढ़ोगे कहाँ से. Exactly, and it's not about greediness. It's actually it's actually in a positive way that you are looking towards something so that you reach there. It's more about it's more about going on and on and not resting in a way. It's not about greediness at all. And it's also about you making a choice about, a lot of things that will bring engagement on LinkedIn, but it's against your ethics. For example, I have no problem in saying कि
ये जो पोस्ट होते हैं ना जिसमें वो वाले होते हैं ना कि अगर इसमें वेयर डू यू वांट टू इंटर्न, 5 कंपनीज, अगर ये कंपनी तो लाइक, ऐसे करो, कमेंट, अगर वो ये लाइक, कंपनी हाँ, तो रिएक्शन. लाइक आई नो, आई नो, सेलिब्रेट आई ये नो. वो. मैं बोला अरे अबे यार. यार, मतलब तुम लोग के एंगेजमेंट से तुम लोग का घर चलते हैं, मतलब इतना डेस्परेशन कहाँ से, मतलब कि मतलब ये आई डोंट गेट दैट पोस्ट, आई डोंट गेट, लाइक आई रियली डोंट गेट, आई डोंट सी एनी आई नो, वैल्यू इन इट. आई नो. आई हैव लाइक, आई मीन, आई एम अगेंस्ट दैट, मतलब मैं नहीं करने वाला ये पोस्ट. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू मेक फन ऑफ इट, आई एम प्लानिंग टू मेक अ पैरोडी फोटो ऑफ इट इन अ फ्यू डेज. तो मजा आएगा, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है उसका. जरूर, जरूर. मेरे को ना एक चीज और समझनी है. तो जैसे अभी इनिशियली हमने बात करी थी कि मीम टेम्पलेट प्लस कॉपी की, राइट? तो क्या पहले आता है ऐसे, मतलब डू यू थिंक कि मेरे दिमाग में पहले कि कोई कॉपी आ गई तो अब उसके हिसाब से मैं टेम्पलेट ढूंढूंगा, या फिर मेरे दिमाग में टेम्पलेट है तो मैं उसके हिसाब से कॉपी बनाऊंगा? तो मतलब हाउ डज इट वर्क? It's both. It's both, honestly. It's both. मेरे केस में sometimes I'm on the app with the templates, and I try to think of वही, like for example if I'm making memes for LinkedIn, then I'm trying to think of वही LinkedIn पे जो topics I talk about, that is LinkedIn itself, college, placements, jobs, corporate life, whatever it is. So वो ये सब topic से related क्या कोई चीज इस template पे fit हो रहा है क्या? So it's more about just scrolling and something strikes. Sometimes it's that, sometimes it is a situation comes in. For example, Twitter पे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, someone had said that a client asking for feedback कि how have I been as a client. So then I realized अरे ये तो बहुत अच्छा मीम टेम्पलेट है. I realized ये बहुत अच्छा एक सिचुएशन है जिसपे मस्त एक रिएक्शन ऐड हो सकता है. तो इसमें मैं पढ़ते पढ़ते आई फाउंड इंस्पिरेशन, एंड देन तुरंत मैं उस पर टेम्पलेट बना के मीम बना दिया, एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू कम आउट टुमारो. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. So it works both ways. I mean, for me it works both ways. बट वेन यू आर डूइंग इट ऑन पर्पज कि यार मेरे को पता है कि मेरे को मीम ही बनाना है, जैसे मेरे पास भी होता है, अगर मेरे को कंटेंट दिमाग में आया, कुछ भी सुबह उठ के आ गया, रिक्शा में आ गया, जहाँ भी आया, वो मैं लिख लेता हूँ कि हाँ चलो, वो रैंडम थॉट्स होती हैं इसको, राइट? बट वेन यू आर डूइंग इट ऑन द पर्पज कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या लिखना है, क्या करना है, तो इस हिसाब में तो आई थिंक उल्टा ही चलता होगा ना. पहले यू गो टू द टेम्पलेट एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टॉपिक्स. Yeah, correct. Yes. Then yeah, always. Yeah. If you're like in the, मतलब हाँ, if you're that doing that specific thing, opening the app, and now it's, मतलब you're actually doing it. It's not an idea that has popped in your, while you're in the washroom or traveling or whatever. Then तो it's always this way for me कि template देखते रहता हूँ कौन सा है, and if something strikes. Otherwise the other. ऑल्सो आई थिंक मीम्स के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेंड, जो जैसे आई थिंक अभी एक रिसेंटली आया था, वो पॉटी ओरियो वाला जो आया था, दैट गर्ल एक्चुअली वेंट वायरल. तो मेरे को मीम के बारे में मैंने 2-3 मतलब देखा इंस्टाग्राम पे, लोगों ने कुछ डाले, मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को नहीं पता था क्या हो रहा है. ठीक है, मैं फिर देखा, मैंने 1-2 न्यूज़ आर्टिकल्स आ गए थे इसके बारे में तब तक. फिर मैंने देखा, देन आई चेक द प्रोफाइल, देन मैंने वीडियो देखा. ऑनेस्टली मेरे को ऐसे उसमें कुछ नहीं लगा, बट मैंने कहा ठीक है, चल रहा है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है यार, तो मेरे ओपिनियन था. सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने देखा कि इस पर ऑलरेडी 2 मिलियन व्यूज़ हैं. तो आई थिंक 2 मिलियन लोग पहले ही देख चुके हैं, तो वो काफ़ी ऊपर जा चुका है जिस टाइम तक मैंने देखा उसको. ठीक है, एंड उसके बाद व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड ट्रैकिंग हर फॉलोअर्स. उस टाइम पे शी वॉज एट, आई थिंक, इफ आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट प्रॉब्ली आई थिंक अराउंड लेस देन 300 के फॉलोअर्स. और मैं पागल हो गया, मैंने कहा अरे 24 घंटे के अंदर मिलियन टच हो गए, मिलियन क्रॉस हो गया अगली सुबह. मैंने कहा हो क्या रहा, अभी मेरे को नहीं पता कितने हैं, बट आई थिंक चलो उसमें कोई और भी फैक्टर्स थे, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे और बाकी क्या फैक्टर थे, बट यू अंडरस्टैंड, राइट? सो बट मेरे को ना अभी जैसे ट्रेंड की बात कर रहे थे, कहाँ से शुरू होते हैं ट्रेंड, कैसे होते हैं, मेरे को वो चीज़ समझनी है. तो भी यार ये ना कुछ ये हो ही जाते हैं, एक्चुअली मैं बोलूँ ये हो ही जाते हैं somehow. I mean, there is no explanation to it in terms of विनोद क्या है उसमें, क्या है क्या. बट लास्ट ईयर, आई मीन, बट ये क्या है ऐसा, मतलब people just, I feel people are just and if they see something that it's actually more about if it's something that they haven't seen before. I think that is what kind of drives a trend most of the times. Like जैसे or if it's something that they see themselves a lot.
they see themselves in that situation a lot. For example, why I think Shweta, you remember, right? The video call that leaked and stuff. So why that may become a trend, became a trend, and it shouldn't have, honestly. Like, I mean, someone's call should not become a trend, but that is how unrelenting the internet is. So, but because everyone is now online class, और हम जैसे online बातें कर रहे हैं, और ऑफिस में ऑनलाइन कॉल हो रहा है, everything is online. The whole world has gone to this meetings and calls and stuff. So I think that is why this situation was so relatable to people, and that's why this thing just trended, that someone कोई बातें करने लगा, and it got leaked, and ऊपर से it was some masala stuff also, right? That the girl was talking about her boyfriend and this and that. So वो मसाला भी मिल गया, situation भी relatable था सबके लिए, so it just hit it off. So there are some elements that you can find some common elements usually, but honestly there is no, it just happens. काफी बार, I mean, if I can talk about, जैसे I'll talk about Rahul Dravid, Cred ad. Okay, so why did it happen? Because what is the element behind any Cred ad, for that matter? It's the element of shock. Getting someone to do something that you just never expected them to do. It's as simple as that. So getting Rahul Dravid to be so valiant, you just never thought you'll see that. They made that happen. So it's getting these small elements, again, like I said before, कि कुछ ऐसा चीज जो पहले देखा नहीं है, तो वही दिखाया और सब शॉक हो गए, और सबको ऑफ कोर्स शेयर करना है, भाई देखो राहुल द्रविड़ इतना पागल हो गया, right? So that's how it started trending. And of course थोड़ा engineering भी होता है, they do a bit of marketing उसमें भी, promotion वो तो होता है, थोड़ा push तो देना पड़ता है, but if your idea is very new, तो automatically people खुद से share करना चाहेंगे, and that is exactly what happened in the case of Rahul Dravid. So Cred का वो master stroke था, I mean that ad was fantastic, I would say. तो so यही यार कुछ elements होते हैं, और कुछ. And I think क्रेड के बाद जो मैजिक पिन का ऐड आया था वो तो गजब था यार. आई थिंक वो था मेरे लिए, वो विन था यार. वो मस्त है, ब्रेड पॉइंट्स, हाँ मस्त था, काफी अच्छा था. ऊपर से दे हैड ब्रेड पॉइंट्स, एंड दे हैड ऊपर से उन लोग ने वो एक्टर्स भी बहुत सही चूज किए थे ना. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट एक्टर. हाँ, इवन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट हाँ मेरे को भी पसंद है. आई गेट इट. या वो बेस्ट था, मस्त था. ट्रू, वेरी ट्रू. But it is, that's the thing, उसमें भी they found that element कि काफी proofable है, काफी what do you call it, मतलब काफी parody कर सकते इस चीज का, because everyone kind of knows that Cred coins इतना जो तुम बोल रहे हो, actually क्या वो कुछ करते हो क्या तुम उसका, सब नहीं करते तो तो that element is there. So मैजिक पिन को पता था कि यूज कर सकते हैं चीज, and they did, and they took a chance. It's something not every brand would have done, but they did. They had the balls to do it, because it could have been a backlash, because where everyone is going gaga over Cred, and you suddenly come up with a parody, it can backfire also, right? But I mean, kudos to them. मुझे भी बहुत मजा आया. मेरे को अच्छा लगा था काफी मतलब ऑनेस्टली क्रेड से बेटर बाद में मेरे को वो लगा था. बट उसके बाद फिर काफी कंपनीज आई थी, दे ट्राई टू कॉपी द सेम ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे इसको, बट उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट क्रेड के ऐड को लेके पैरोडी बनाना शुरू किया. सो आई थिंक वो इतना नहीं चला, बट व्हाई दिस मैजिक पेन वाला वर्क डेज कि वो अनएक्सपेक्टेड था. एकदम लोगों को शॉक में आ गया कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, और फिर वो अच्छा भी था, कंटेंट भी अच्छा था. तो आई थिंक वो रिलेट भी कर रहा है, उनको मजे से मतलब था कि हाँ यार ये चीज़ है देखने वाली. वो वाला चीज़ कहीं ना कहीं था, अनएक्सपेक्टेड वाला फैक्टर आ ही गया है ना घूम फिर के. करेक्ट, बिकॉज अपना मेंटालिटी भी कैसा होता है, आई विल टेल यू. जैसे इफ देयर इज अ वेरी गुड फोन दैट हैज कम आउट इन द मार्केट, आई रिमेंबर, सो आई हैव यूज्ड दिस फोन कॉल्ड Poco F1 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. And when that came, that was kind of path breaking, because at 20,000 you were giving a chip, you were giving Snapdragon 840, which was like the top end. You get it only in the OnePlus, the top OnePlus and stuff like that. And they were giving it at 20,000. But what was happening? So everyone is bound to say good about the phone, right? Because they have gotten this chipset at such a crazy price. But then I saw a lot of YouTubers जो लोग फिर फोन के बारे में बकवास भी बोलने लगे, and very nitpicky about things.
लाइक इसमें ये नहीं है वो नहीं है ना, मैं ना तो मैं आई एज अ कंज्यूमर आई यू नो आई वाज बाइंग, आई वाज डिसाइडिंग टू बाय, सो आई वाज डूइंग माय रिसर्च विद ऑल दीज वीडियोस एंड आई फाउंड सम ऑफ दीज वीडियोस जो लाइक लिटरली छोटी से छोटी कुछ भी चीज को बड़ा बना रहे और बोल रहे कि भाई ये फोन मत खरीदो, इट्स अ डील ब्रेकर, स्टफ लाइक दैट. सो यू नो इट्स दैट बैलेंस वेयर अगर कोई चीज बहुत अच्छा होते जा रहा है, so there are also people looking out for waiting to see कि क्या कोई आके इसके बारे में बुरा बोलेगा, कुछ अलग बोलेगा, बुरा से भी ज्यादा कुछ अलग बोलेगा. तो मैजिक पिन essentially did that कि आके कुछ तो उसी उनका कॉन्सेप्ट लेके उसको थोड़ा घुमा दिया, अलग भी कर दिया. एंड ऑफ कोर्स अटेंशन तो इतना ऑडियंस का आ ही चुका है ना, तो दे काइंड ऑफ जस्ट फीडेड ऑफ द अटेंशन. इतने लोग ऑलरेडी क्रेड दिमाग में उनका इतना बसा है. They just came, that audience instantly connected to, because they made the background also similar ना, पूरा same था. That sofa जिसपे वो बैठा रहता है, you know, I forgot the Yes, name of the yes. actor. Everything was same, so it was instantly you could connect कि किसका parody कर रहे हैं लोग. So वो elements they got spot, and the music also, the whole aesthetic सब spot on था. मतलब मस्त उन लोग ने replicate किया छोटे छोटी चीजें. सो इंस्टेंटली लोगों को दिमाग में आ गया कि भाई ये किसकी पैरोडी कर रहे हैं. प्लस इसमें एक और चीज़ थी मेरे हिसाब से कि लाइक आई बीन यूजिंग क्रेड आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. काफ़ी टाइम हो गया मेरे को क्रेड यूज़ करते करते, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं. बट ऑल मतलब if someone is watching from cred or magic pin, consider this as a feedback. Pranjal is laughing here. consider this as a feedback. बट क्रेड के कॉइन्स यार आज तक मेरे तो यूज़ हुए नहीं है. वो कैशबैक मिल गए मेरे को, 5-6 रुपये मिले होंगे हर बार, 5-6 हज़ार पॉइंट्स खर्च के 5-6 रुपये मिले होंगे, वो वाली चीज़ हुई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. बट मैजिक पेन के पॉइंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाते हैं. दो आई डोंट यूज़ मैजिक पेन अभी, बट कॉलेज में आई ट्राइड, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते थे वो वाले पॉइंट्स. तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी उस एड में. सेम वही तो उनका मेन ये था ना, अपॉर्चुनिटी था. बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर मैजिक पिन में जिसने ये सोचा was a cred user themselves and they're like भाई ये जो इतना कॉइन्स का नारा लगा रहे, हमारे कॉइन्स तो पड़े ही है, तो बस इसको यूज करते हैं. एंड पीपल कुड रिलेट बिकॉज हमारे लाइक हाउ वी थिंक कि ये कॉइन्स का हो क्या रहा है. तो आई एम प्रीटी श्योर देयर आर 100 thousands of lakhs of cred users which are like ये कॉइन्स का हो क्या रहा है. आई मीन प्रॉब्ली क्रेड बिकॉज जस्ट यूपीआई में क्रेडिट कार्ड देने बिल भरने को मिल रहा है, वो एक चीज है. एंड मतलब मे बी एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस, or maybe for the 5-6 rupees cashback. Same here है, मेरा भी coins पड़ा ही है, that 5-6 rupees cashback and maybe UPI का UPI से पे कर सकते हो, उसका flexibility. बाकी और I mean देखते हैं कभी coin का कुछ हुआ तो हुआ. And अभी था ना ऑक्सीजन, people started posting screenshots, coin से ऑक्सीजन हो रहा है, वो फिर लोग एकदम प्राउड हो गए, मतलब भाई देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. तो आपने मेरा ट्वीट देखा था, मैंने डाला था कि मैंने स्क्रीनशॉट ही डाला डोनेट करके. तो मैंने क्या करा कि मैंने जब ये सब ठंडा हो गया, एकदम वेव आया था कि हाँ स्क्रीनशॉट हर प्लेटफॉर्म पे हर कोई स्क्रीनशॉट डाल रहा है. उसके बाद जब ठंडा हो गया, मैं गया कि यार अब डाल सकते हैं ये स्क्रीनशॉट. मैंने सिर्फ ट्विटर पे इतना लिखा, डोनेट करें अब डाल सकते हैं. तो वो भी एक मीम में कन्वर्ट हो गया. लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली मीम बट इसको एंजॉय कर रहे थे. प्लस आई थिंक अभी क्रेड वाले क्या करेंगे, इस वीडियो को उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होंगे डिसलाइक आएंगे. बट चलो यहाँ तक का तो वॉच टाइम दिया उन्होंने. कुणाल शाह विल नॉट शेयर अ मीम मेरा एनी मोर. खत्म मेरा, एक ही बार चांस है, खत्म. चलो विजय शेखर शर्मा इज देयर, पेटीएम की बातें हम कर लेंगे थोड़ी बात. बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट प्रांजल. सो मीम मार्केटिंग जो है इट्स अ वेरी न्यू फील्ड इन इंडिया, राइट. तो मीम चलो हाँ हंसी मजाक से शुरू हुआ, फेसबुक पेजेस वर स्टार्टेड, इंस्टाग्राम पेजेस वर स्टार्टेड, राइट. लोगों को अच्छा लगता है, जोक चल रहा है. बट नाउ मीम मार्केटिंग इज काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री तो नहीं है बट शुरुआत हो गई है. एक लोगों को पता चल गया कंपनी आर स्पेंडिंग मनी ऑन मीम, पीपल आर हायरिंग फॉर द मीम मेकिंग, मीम मार्केटिंग पोजीशंस, राइट. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मीम मार्केटिंग? That is one thing. Second, ये जो meme का जो templates है, NFTs में बिक रहे. So one meme template that you know, इधर एक burning house and this girl who's laughing an evil laugh, you know, that got sold for $500,000 as an NFT, like crazy shit. So I mean,
So this economy is going up, and that is also going to take the meme marketing को भी वो अपने साथ ऊपर लेने ही वाला, because that's how people are viewing it as an industry, and how they need to be a part of it in a way, because people are so hyped about it. People want to be a part of this culture in a way, right? Where they want to, how many people, it's like they want to be a part of this, because Dogecoin का क्या कुछ fundamentals है? बिल्कुल नहीं है. क्या है वो? Dogecoin है भी क्या? मजाक के लिए बनाया गया था. बट पीपल वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग ना. खुद खरीदेंगे तो एक फीलिंग आता है ना. हाउ फॉर एग्जाम्पल काफी बार किसी ने कोई मे बी कोई कंपनी का शेयर खरीदा, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट फीलिंग ऑफ आई ओन शेयर्स ऑफ दिस कंपनी. यू नो हाउ दे से दैट रादर देन बाइंग आईटीसी का प्रोडक्ट, हाउ अबाउट यू बाय आईटीसी का एक शेयर 200 रुपीज में. वॉट इज दैट फीलिंग, राइट? यू वॉन्ट टू हैव दैट फीलिंग वेयर यू कैन गो एंड ब्रैग कि देखो तुमने बिस्किट खरीदा, मैं आईटीसी कंपनी का शेयर ओन करता हूँ, राइट? सो पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल हैव इन्वेस्टेड मनी इन डोजकॉइन where they don't understand डोजकॉइन has nothing. I mean, it अभी थोड़ा uses हो रहा है probably because of Elon Musk, but it had nothing for it. So वही यार, people want to be a part of it, and that is going to take, ये इकोनॉमी ही is going to take meme marketing up, where brands want to join in. अभी brands तो उधर ही भागेंगे ना जहाँ consumers है, जहाँ consumers का attention मिल सकता है, तो brands भी उधर ही भागेंगे. And that's why meme marketing will become a part of the whole marketing funnel for a brand. It's, for very big brands it can be like a very major part, but even for startups and it can be one part of the funnel. So every time a marketing campaign comes up, there is that top of the funnel awareness stage, right, where people need to know about the brand to buy from it, right? Know about the brand, or at least feel that the brand is cool. अपना जनरेशन तो सोचता है ना, क्या ये ब्रांड कूल है, क्या मेरे को जोमेटो कूल लगता है, क्या मुझे इनका वाइब आता है क्या. अपना जनरेशन काफी उस वेवलेंथ पे सोचता है, इतना ज्यादा, बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपेटिटर्स, राइट? we have a choice between Zomato and Swiggy. So in a way our mind judges like, कि oh यार Zomato क्या cool है. So in a way maybe हम सबसे पहले Zomato का ऐप ओपन करें before Swiggy, and that might just lead to us buying something from Zomato rather than Swiggy. You never know how the subconscious works. Yes. तो that is the thing. लोगों का attention उधर जा रहा है, whether it be some cryptocurrency, whether it is some NFT or stuff like that, and people, then of course brands भी उधर ही भागेंगे. So meme marketing will go up, and it will become a part. I mean, that's how I see the future. It will become a part of the brand's overall strategy. I will never say it should be the only part. No, because you need to sell also, and memes will never promise sales. It's all about awareness. So I will never come and say memes will give you sales. I will never promise that as a marketer. I will always promise कि we'll get people talking about your brand. That will get you, because a lot of people can't get this also. They crave this. They might have all the money in the world through funding and this and that, but they just cannot get people to talk about the brand, and that is not an easy thing. So memes can help you, get that feel, get that thing of people are talking, and or there is a sentiment about your brand. There is a voice on the internet about your brand. So I think जैसे आपने Zomato का भी एग्जांपल लिया, तो in my opinion जैसे Zomato, the kind of activities they are doing with the email marketing, with their Instagram and different social media handles, तो I think यहाँ पे Zomato का एक recall value बढ़ गया है. मतलब मेरे फ़ोन में अभी स्विगी भी है, जोमेटो भी है, बट एवरी टाइम इफ़ आई वांट टू ऑर्डर समथिंग आई विल गो टू जोमेटो. पहली चीज़ मैं जोमेटो पे जाता हूँ. स्विगी पे भी चला जाता हूँ, ठीक है, अगर वहाँ पे ज़्यादा महंगा है या फिर स्विगी पे ऑफर्स अच्छे हैं, जो भी है, ठीक है, आई ऑल्सो यूज स्विगी. बट जोमेटो मेरे दिमाग में सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि वो रिकॉल वैल्यू बढ़ गया. तो आई थिंक मीम्स ओवरऑल एज अ कॉन्सेप्ट हर एक स्टार्टअप के लिए, हर एक ब्रांड के लिए, इवन फॉर द लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे लाइक हाउ वी गॉट कनेक्टेड, मेरे को एक फ्रेंड ने आपके बारे में बताया. तो वो क्यों बताया? बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट यू आर डूइंग मीम्स. बट मीम्स के एक रिकॉल वैल्यू आपकी अलग हो जाती है. जिस टाइप का कंटेंट मैं कर रहा हूँ उसके लिए भी रिकॉल वैल्यू होगी, किसी के लिए अलग होगी, किसी के लिए अलग होगी. बट मीम्स आर सो मच रिलेटेबल विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. शायद मेरा कंटेंट सबके लिए रिलेटेबल नहीं होगा, बट मीम्स ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर कोई ना कोई एक देसी बंदा रिलेट कर लेता है. तो वहाँ से आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है हर चीज़ की, बीट अ ब्रांड, बीट एन इंडिविजुअल. Exactly. Even and it's also about how consistent the brand is with that, right? Like Zomato,
ऐसा नहीं कि मीम, मतलब उनका जो पूरा इंस्टाग्राम है वो लोग वैसा ही फनी सा ही एक टोन मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि बस 10 दिन के लिए काफी फनी बन गए, उसके बाद वापस हम एक ट्रेडिशनल सा ब्रांड बन गए, नहीं। जितना मेंटेन करके रखोगे उतना लोगों के दिमाग में वो बिल्डअप होता जाएगा। जो रिकॉल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट कीप्स बिल्डिंग अप, एंड दैट्स व्हाई इट्स एज सिंपल एज यू choosing to open Zomato first over Swiggy. It's actually as simple as that. So I mean, that's how this whole recall thing works. I mean, that's how I feel. You know, it helps. This memes help especially. एंड आई थिंक एक एक मतलब मैंने आई थिंक ट्विटर वगैरह पे कहीं पर पढ़ा था कि जोमेटो का इंस्टाग्राम पेज इज नॉट द इंस्टाग्राम पेज ऑफ अ फूड डिलीवरी ऐप, इट्स एक्चुअली अ मीम पेज. एंड जोमेटो के चलते चलते देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स. उनका भी अच्छा है. फेविकॉल का भी काफी बढ़िया होता है. Fevicol भी अच्छा था, yeah. Fevicol का तो I mean they're pretty good. Fevicol is good. Amul is so consistent with how they do things, right? उनका वो mascot लेके they every incident, every new topical event or a celebration, no, maybe Republic Day, उसका एक मस्त सा creative बना के they maintain it. People just know कि Amul से you know what to expect from their social media. So that is the thing. But if you also know कि Zomato पे if you notice, you won't see these. So उनके push notifications are funny, उनका Instagram is funny, email भी sort of funny, but you won't see such things on TV, on their TV ads or the YouTube ads. They are very salesy कि Correct. खाने का मस्त फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, ऑर्डर करो, राइट. सो उसमें भी दे नो कि कौन सा सेगमेंट को कैसा चीजें दिखाना है. टीवीज ऑडियंस को खाने से मतलब है. दे नो व्हाट दे वांट टू बाय मोस्टली. They are not taking decisions like us. They know what they want. तो उनको बस दिखाना है, बस खाने का फोटो दिखा के थोड़ा बस इन्फ्लुएंस करना है एंड होप दैट दे ऑर्डर फ्रॉम आवर. तो वो भी है यार, ऑडियंस कहाँ कैसी बैठी है उसके अकॉर्डिंग तुम वो चीजें करो. तो वही चीज़ें जो हमने इनिशियली बात करी थी कि ऑडियंस तो सेम है. मैं ही बंदा हूँ, आप ही हो जो हर एक ऐप पे जा रहा है, राइट. बट आपका माइंडसेट अलग है. अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप मीम के हिसाब से नहीं देख रहे. आपको पता है बीच में एड्स आते हैं, राइट. बट इंस्टाग्राम पे मेरे को पता है कि यार दोस्त ने 4 मीम भेजे होंगे, मैं उसको 4 भेजूंगा. पता है मेरे को क्या करना है. स्टोरी पे किसी ने कुछ डाला होगा, वही सब चलता है. लिंक्डइन पे मैं शायद ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इतनी ज़्यादा. ट्विटर पे भी मेरे को पता है कि किस. तो माइंडसेट आपका अलग होता है. जब भी आप वो आइकॉन पे जब आप टैप करते हो ना अपने फ़ोन पे, तो आपको पता होता है आप किस चीज़ पे एंटर कर रहे हो. तो इट्स लाइक अ डिफरेंट जोन, एकदम आप चले जाते हो. True. तो इसलिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होकर आप चीज़ें टारगेट कर रहे हो कि कहाँ पे क्या चलेगा. एंड बेसिकली यू आर प्लेइंग विद द ह्यूमन साइकोलॉजी. Yes, absolutely. वही सिंपल सी बात है. That is what memes are. It's human psychology. It's language. People are it's language, right? I mean, people, I know people are, there are many people who are much more comfortable to send a meme than say hi. It's much difficult to type hi. It's much easier to just send a meme and start conversation. This is how we are right now. Literally this is how things happen. People become friends by just sharing memes rather than hi, hello, kya chal raha hai. They prefer sharing memes to know more about their personalities rather than just directly asking, okay, how are you and whatever, right? So that's how deep this culture has actually, meme culture अपने अंदर आ गया. That हम memes के थ्रू बातें करते हैं ना, actually even understand each other कि अपना दोनों का personality कैसा है, match होता है क्या. It's like if you and XYZ person like the same meme, relate to the same kind of humor, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो फील आते रहता है कि आई कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन. प्रॉबेबली अपना पर्सनालिटी थोड़ा मैच होता है, वही बात फील अपने आते रहता है. तो वही बात है एग्जैक्टली. ऑल्सो जैसे अभी हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारे जो हमसे पहली जनरेशन थी, लाइक अवर पेरेंट्स वगैरह, अब उनको देख लो तो अभी दे स्टार्टेड यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक. काफ़ी टाइम हो गया इस जनरेशन में ये सब चीज़ें आते हैं. बहुत कम, मतलब आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक फिगर्स टू बैक दिस, बट आई थिंक काफ़ी जनरेशन, मतलब काफ़ी इस जनरेशन के सेगमेंट ने ये चीज़ें अडेप्ट कर ली हैं. उनको फेसबुक चलाना आ गया है, उनको व्हाट्सएप चलाना आ गया है, उनको बेसिक चीज़ें डीपी बदलनी, स्टेटस डालना, स्टोरी. इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी ये लोग आ चुके हैं. तो अभी जैसे
मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं मम्मी को कोई मीम दिखाता हूँ तो मेरे को उन्हें कभी कभी समझाना भी पड़ता है। अरे मम्मी वो देखती है कि क्या है, बच्चे हंस रहे हैं तो वो हंस लेती हैं, बट मेरे को उन्हें समझाना पड़ता है कभी कभी। सेम गोज विद माई फादर, कि उनको समझाना पड़ता है वो चीज़, राइट। बट दिस इज नॉट समथिंग कि मेरे को बहन को समझाना पड़े या किसी और को, दोस्त को समझाना पड़े। तो इस चीज़ में डू यू थिंक कि मीम्स जो हमारी पहले की जनरेशन है, या बूमर्स जिनको बोलते हैं शायद, कि इनके दिमाग में कभी ना कभी जाएगा कि मीम्स होता क्या है, इनको समझ आएगी ये चीज़? Yeah. I think yeah, it's a gap, I would say, but it is slowly. I mean, personal experience से बोल रहा हूँ, वो gap थोड़ा bridge हो रहा है, definitely. And I mean, still there is still levels to memes also, right? Like बहुत ज़्यादा dank होगा तो none of our parents will understand. But if it's a little wholesome, like for example, if it's a LinkedIn meme, I would say there is a high chance of understanding. Because I personally also used to think कि मैं जब memes डालने लगा, I used to think कि यार अपना generation जो है from 18 to 27 28 whatever I have, वो audience जो है मेरे पास, वो ही probably मेरे memes के साथ interact करेगी, and I am going to get backlash from the 40-year-olds, from the 45-year-olds and the 50-year-olds. But to my surprise, I mean, I still get back. जब भी backlash मुझे मिलता है, मुझे उसी category से मिलता है, no doubt. But there is still a lot bigger percentage of people from that, senior people, जो appreciate करते हैं मेरे memes को. They actually write comments like, my content is light-hearted. It's something different that they're seeing on LinkedIn, and they just like it because it's something different. As simple as that. I kind of lucked out that way because it could have backfired because I'm doing something different, but it didn't backfire in my case. So that gap is bridging, I would say, but it's also about how that level of memes is it kind of easy to consume, understand? Is it too dank? Is it too smart? Or is does it have language or terminologies that only our generation understands? बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जो हम ही समझते हैं ना. अर्बन डिक्शनरी बोलते हैं उस चीज को, वो सारे वर्ड्स होते हैं उसमें. तो वो सब चीजें यूज करेंगे तो फिर कहाँ से समझेगा. तो इट्स अबाउट दैट ऑल्सो. प्लस जितना ज्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है, इफ पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक द डे माई पेरेंट्स मे बी जॉइन इंस्टाग्राम, आई विल, तो इट्स डूम्स डे फॉर मी पर्सनली, बट इट विल शो कि कुछ तो मतलब हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इन अ वे. Because they are getting intrigued. Like, my mom asks me about Instagram कभी कभी, ये है क्या, एड देखा मे बी या किसी और से सुना, तो शी जस्ट आस्क मी है क्या. आई एम लाइक नहीं, आप फेसबुक पे रहो, यहाँ पे मत आओ, मतलब प्लीज यहाँ ये हमारे तक छोड़ दो. दैट्स हाउ वी फेल्ट when their generation took over Facebook, right? It felt like यार अभी ये छोड़ना पड़ेगा प्लेटफॉर्म. तो अभी इंस्टाग्राम पे अभी ये भी नहीं छोड़ना है, मतलब ये इस पे मत आओ, थोड़ा दिन रहो फेसबुक पे. तो बट आई गेस आ ही जाएंगे मोर और लेस. इंस्टाग्राम पे माँ हम बाप भी कहीं आके और धंधा चलेंगे, बंद करवाएंगे. ट्विटर पे चलेंगे. इंस्टाग्राम पे माँ बाप आके धंधा बंद कर, मम्मी को एग्जैक्टली पता चलेगा मेरा बच्चा करता क्या है. उनको क्लू ही नहीं है अभी तक. पता है कि हाँ क्या मार्केटिंग कुछ करता है, जॉब कर रहा है, बट पता नहीं है कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है. एग्जैक्टली. किस 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 टाइप की करतूतें करता है मेरा बच्चा, वो नहीं पता उन्हें. यस, क्या क्या स्टोरीज शेयर करता है. अरे फिलोसॉफिकल बातें करता है, अरे डायलॉग शेयर करता है, सब कुछ पता चले. सो प्रांजल, ट्रेंड की जैसे हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं कॉन्वर्जेशन में. तो ट्रेंड के लिए मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जैसे हाउ समवन कैन स्टे अपडेटेड विद द करंट ट्रेंड्स. मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आई एम नॉट वेरी ओल्ड स्कूल, वैसे तो नहीं बोलूँगा कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि ट्रेंड पता ही नहीं चलते. जब सारी दुनिया को पता चल गया तब पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ भी चल रहा है. ट्रू यार, मेरे साथ भी होता था एक पॉइंट पे. देयर इज इट्स एक्चुअली वही, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई वर्क इन अ मीम मार्केटिंग स्टार्टअप, I need to be updated, right? But I'll tell you something. It's also about the people you surround yourself with. So if those people are really into memes, वो खुद ही तुमको लेटेस्ट ट्रेंड से रिलेटेड मीम्स भेज देंगे. So मेरे, even if I am not updated, someone in my team suggest something in the meeting कि guys वो ट्रेंड पे कुछ करते हैं, उधर से मेरे को भी पता चल जाता है, अच्छा चलो ये ट्रेंड है अभी.
So it's actually about your environment also and the people you surround yourself with. If your environment does not have too many people जो इतना memes पे actively follow करते हैं, then you have to put your own efforts and follow accounts जो meme जो trend जल्दी पकड़ते हैं. और you just need to be very active on Twitter and see कि explore में जाके politics के अलावा क्या कुछ और है क्या, कुछ और चीज़ों के बारे में बात हो रही है क्या. बिकॉज मोस्टली ये सारे जो ट्रेंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम ये ट्विटर पे ही स्टार्ट होता है. ट्विटर पे बहुत ट्वीट्स आ जाते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग ट्रेंड होने लगता है, फिर ये जाके वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट फिर इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस शेयर करते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होता है. दिस इज हाउ द चेन ऑफ थिंग्स वर्क, राइट. तो यही आई मीन बेसिकली you need to be active at the source of things, which is Twitter. But otherwise, if you have a team around you or some friends around you who are like really into this, वो मे भी खुद मीम्स बनाते भी है, खुद के पर्सनल अकाउंट के लिए बनाते हैं, खुद भी मे भी कुछ पेज रन करते हैं, तो बस उनके थ्रू भी तुमको पता चल ही जाता है. क्योंकि बहुत बार होता है ना, इट्स वेरी you can observe it in very small things. Like व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो दोस्तों के साथ, तो जो मीमर वाला जो दोस्त है तुम्हारा, वो तुमको जिफ्स या फिर स्टिकर्स जो होते हैं ना व्हाट्सएप के, वो तुमको वो नए टेम्पलेट का भेजेगा. उधर से तुमको स्ट्राइक हो रहा है, ये क्या है, ये तो पहली बार ये टेम्पलेट देख रहा हो, या फिर ये स्टिकर देख रहा हो, कुछ नया है क्या ये, तो तुमको वहां से पता चल गया. इट्स दीज स्मॉल थिंग्स वहां से पता चल जाता है. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ योर नेटवर्क, योर एनवायरमेंट, or even I mean if that is not there then you have to kind of put your own effort. So honestly saying मैं भी उतना track नहीं करता personally because I have a team to fall back on where they will tell me, they will not tell me consciously, not like प्रांजल को बताना है क्या ट्रेंड है, बट वो मीटिंग में बोलते हैं, वहां से मुझे भी पता चली जाता है. So I can have that liberty. But if I am going to go do meme marketing in the future in a company where meme marketing has not been done, then I have to take the effort to be up to date with all the trends. So Pranjal, now we are jumping to the main course of this entire podcast, that is creating your personal brand using memes, and that is something which you've been doing for a long time. आपको कितना टाइम हुआ LinkedIn पे ये सब करते हो? ये सब जो हरकतें आप कर रहे हो, कब से कर रहे हो? memes तो 4 months. I mean active for a year. Literally, like today, my आज का post was about being active for a year. But memes I started posting like 4 months, maybe 5 months. This year, probably this year. But I'll tell you why, because I mean, of course, I wasn't confident at all. Will it work on LinkedIn, especially of all the platforms? LinkedIn पे करेगा का क्या? Because you know how it is. I don't need to explain. So I think for the longest time I was skeptical. I wanted to play safe. So सबसे पहले it's been a journey. I started with playing very safe. I talked about when I started last year May में. I talked about social media updates. I talk about, for example, Twitter पे ये नया feature आ गया और Facebook पे नया feature आ रहा है. I used to talk about these things, which felt like very like what a marketing guy would post on LinkedIn. एकदम template stuff, blueprint. Typical. उसके बाद I felt like यार I'm playing it, not even playing it safe, but this is not me. I am not this guy. I keep myself up to date with these things, but it's not the content I want to put out. This is not my personality. तो उसके बाद I started posting, थोड़ा sarcastic, quirky वाले ऐसे type of 1-liners, 2-liners kind of about corporate life, about LinkedIn, वो सब चीजें. तब तक मैं मीम नहीं डालता था. You can essentially say that if आजकल जो मैं मीम्स डालता, अगर उसको कभी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो कैसा दिखेगा, वो चीज मैं करना स्टार्ट किया पहले. बिकॉज आई फेल्ट लाइक यार डायरेक्टली अगर मैं मीम डालूंगा, परेश रावल की फोटो डालूंगा, अक्षय कुमार की फोटो डालूंगा लिंक्डइन पे, कैसा दिखेगा. तो आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अजीब होगा. आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड डू इट. सो मैं ऑलमोस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में डालता था. अभी जैसे मिर्जापुर में एक डायलॉग है, राइट, मुन्ना भैया का कि क्या अभी ऐसा इमीडिएट सोचे नहीं है लेकिन सोचेंगे, ये वाला एक डायलॉग है. तो ये बहुत भारी डायलॉग है. काफी सिचुएशंस यू कैन ऐड टू दिस टू मेक अ मीम, राइट. सो अभी इफ यू आस्क मी टू पोस्ट, आई वुड पोस्ट दिस ओनली. आई वुड पोस्ट दिस. आई वुड टेक मुन्ना भैया's photo with the dialogue and I'll attach the caption and I'll post. But I did the same exact thing in text 6 months back. मतलब अक्टूबर में जब मिर्जापुर 2 आया था, कि मैंने ऊपर लिखा सिचुएशन और नीचे मैंने मुन्ना भैया का डायलॉग लिखा और पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में डाला. It got really good. I think I remember 700-800 likes तो आए थे.
बट स्टिल वो इम्पैक्ट तो नहीं था ना जो जो मुन्ना भैया का फोटो और डायलॉग के साथ होता, वो इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था. एंड आई गेट इट. सो it has been a journey of understanding if audience will actually like this. So when I saw कि ये लोग मेरे ऐसे kind of text format में जो memes है उन पे response मुझे दिख रहा है, it gave me confidence कि maybe मैं actual meme भी डाल सकता हूँ. तो फिर मैं वो सब फोटो वोटो के साथ मतलब प्रॉपर जैसी मीम होती है वैसे ही मैं डालने शुरू किया. मैं जस्ट एक वो भी कब वीकेंड्स मोस्टली आई ट्राइड पुटिंग देम ऑन फ्राइडे संडे व्हेन आई वुड से ऑडियंस और थोड़ी कैजुअल होती है राइट बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीक दे आर मोर चिल तो दे डोंट माइंड आई वुड से इतना. तो तब डालने लगा एंड यार काफी चलने लगा. फिर वीकडे का भी कॉन्फिडेंस मिल गया तो अभी तो मैं डालता ही. तो उसके बाद दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ गॉट द कॉन्फिडेंस. बस उसके बाद अभी तो क्या ही है अभी तो. So there is a saying that a picture speaks 1,000 words. So वही चीज़ जैसे मुन्ना भाई की अगर फोटो है नीचे डायलॉग लिखे तो मेरे दिमाग में वो चल जाएगा अगर मैंने देखा हुआ है. लेकिन अगर फ्रेंड्स का कोई मीम्स है तो शायद मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है. बट मुन्ना भाई वाला में वो आवाज़ आती है आपके दिमाग में पीछे कि एकदम इमीडिएट सोचे नहीं है जिस हिसाब से वो डायलॉग था वो चलने लगता है आपको जो शायद कहीं ना कहीं टेक्स्ट में रिलेट नहीं कर सकता है. वो फील आ जाती है पढ़ के. दैट फील फैक्टर हैज टू बी देयर. Exactly. You just go into that. Exactly. You just go into that movie altogether, right? Into that scene, and you're like, यार वो अपने आप mind चला जाता है. That's the beauty of it. So that's why Elon Musk का वो quote है ना कि if a picture says 1,000 words, a meme probably says 10,000 words, right? Like तो अभी वो एक situation में एग्जांपल चला जाता है. एक एग्जांपल बहुत सही है जैसे वो नहीं है परेश रावल का एक खोपड़ी तोड़ साली. तो ऐसे नहीं पढ़ता मैं उसको कभी वैसे पढ़ ही नहीं सकता कि खोपड़ी तोड़ साले की. वो चलता ही वैसे एक खोपड़ी तोड़ता है वो पूरा आ जाता है कि वो हाथ में लोटा लेके फेंक रहा है. वो एकदम पूरा आपके सामने आ जाता है सब कुछ राइट. तो True. आई थिंक That's a बट beauty. प्रांजल इज अ नेम आई थिंक विच पीपल कैन रिलेट ऑन लिंक्डइन कि हाँ यार प्रांजल ओहो ये तो मीम वाला बंदा है. मतलब ये पर्सोना है लोगों के दिमाग में. दिस इज व्हाट आई थिंक राइट. एंड now the real question is how memes can help someone with their own personal brand. See, I would say it's about. It's not though so much about strategy. It's not so much about critical thinking. It is mostly about your personality, how you are as a person. अगर people जो सिर्फ memes post करेंगे on LinkedIn example just for engagement and they are actually not like that in real life. For example, if I am doing this podcast with you, I mean, be honest, doesn't it feel like I sound and I talk like someone जो memes बनाते हैं? I hope I do, right? So, but if someone who is just doing it for engagement and then comes on a podcast, कभी तो आएगा ना podcast करेगा, interview करेगा, कुछ कभी तो बात करेगा ना, and वहाँ पे एकदम disconnect सा feel होता है कि भाई ये क्या ये memes बनाता है. तो that I mean वो हो जाता है. So it's more about your personality. If your personality is like this कि whatever मतलब funny quirky and तुमको ऐसे ही मतलब तुम ऐसे ही chill हो whatever it is, then मतलब then make it, then go ahead with it. It's more about that. I feel that is the first question you should have if you want to grow your personal brand through memes. क्या मैं वो बंदा हूँ या बंदी हूँ? Does it look like that? Does my persona look like that in real life? Because even if on LinkedIn you're not coming on video so much, right? It's mostly text, or a photo or a meme, whatever. You're इतना तुम सामने आते नहीं हो, but कभी ना कभी तो आओगे, तो वहाँ मैच हो रहेगा. As simple as that. Or even small things like comment. जब you reply to comments, तब reply भी देखो ना. The way I reply is pretty, I would say pretty different to the way other people probably reply. They would, I've seen formally reply करते काफी. I would say मैं तो हिंदी में ही लिखता हूँ replies. chill हाँ, एकदम so informal सी बातें करता आई वुड से कि आपको क्वर्की जो माइंड होता है ना नॉटी दिमाग आपका वहाँ पे भी आ जाता है क्योंकि वो आपके साथ ही है. वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक डिफरेंट मूड में जाना पड़ता है कि मतलब आई थिंक मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई कैन बी प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल एट द सेम टाइम. मेरे को पता है सेम पोस्ट पे किसको इंग्लिश में रिप्लाई करना है तमीज से, किसको मैं हिंदी में भाई के साथ लिख के भी देख सकता हूँ. पता है कहाँ पे क्या इमोजी लगानी है क्योंकि दैट काइंड ऑफ राइट. बिकॉज लिंक्डइन इज नो मोर अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकर्स. इट्स नॉट कि एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह था पहले. लिंक्डइन इज मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स नाउ, स्पेशली दोज हु आर इन टेक्स्ट के लिए कोई नहीं था यार. फेसबुक तो डेड है ही. टेक्स्ट जो लोग कैमरा शाय है, जो लोग बाकी ऑडियो वीडियो नहीं कर सकते तो उनके लिए टेक्स्ट ही बचता है. थोड़ी बहुत इमेजेस कर लो आप एंड आई थिंक उनके लिए लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. बट
अगर like let's not talk about personal brand here with the memes, let's not relate it to it, because personal brand तो वही हो गया आप personally कौन हो. But let's say if there is someone who wants to try memes, let's say once or twice a week, right? तो यहाँ पे या फिर नॉट जस्ट फॉर अ पर्सनल ब्रांड, बट अगर कोई बंदा स्टार्ट करने की सोच रहा है कि ये होता कैसे, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ट्राई करा था, राइट. आई हैवंट पोस्टेड एनी मीम्स, बट मैंने ट्राई कैसे करा था, मैंने एक दो वेबसाइट ढूंढी ऑनलाइन, वहाँ से सारे टेम्पलेट डाउनलोड कर ली. एंड इनफैक्ट मेरा ना एक मीम का पूरा डेटाबेस बना रखा है मैंने, एक पूरा फोल्डर है उसमें हेरा फेरी के, तारक मेहता की, मैंने दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी है, राइट. एंड मेरा क्या प्रोसेस था, मैं वहाँ पे जाता था, मैं इमेजेस देखता था, वही कॉन्शियसली कर रहा था मैं चीज़, इमेजेस देखता था तो दिमाग में कुछ पता था कि टॉपिक ये है, इसके ऊपर करना है, जहाँ पे रिलेट होता था मैं बना देता था. मतलब दिस इज हाउ आई डिड इट. मैंने कहीं पोस्ट नहीं करा, बट मैं चीज़ ट्राई कर रहा था कि ये चलता ही ऐसा, राइट. तो दिस इज हाउ इज वर्किंग. सो अभी अगर ऐसा किसी को करना है तो आई थिंक मेरे लिए जो इशू आया था, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे. रिसोर्सेज आज मेरे को पता ही नहीं था कि टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे. एंड इनफैक्ट जो ऑनलाइन वेबसाइट्स भी थी, कहीं काफ़ी जगह पे लिमिटेड टेम्पलेट्स थे. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब यू बीन इन टू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, सो लाइक दिस माई लास्ट क्वेश्चन, what are the resources someone can refer who's starting with meme or meme marketing? सबसे that's the best part. कुछ इतना कुछ चाहिए ही नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए. इट्स ऑल अबाउट दैट आइडिया. you have apps. You have this app called Meme Generator. I think it's the best app out there. It's a simple, I mean, Play Store पे जाओ, just meme search करो, you'll get enough apps. Just download the first 4-5 apps. You have templates like anything. It's actually resources का इतना कुछ है ही नहीं. It's about it's actually purely idea. It's so much about the human mind, the psychology, as we have been discussing. कि इट्स नॉट टूल्स. टूल्स भी क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए टूल्स. एक वीडियो क्रिएटर को तो फिर भी टूल्स की जरूरत होती है ना, काफी. प्रीमियर प्रो की जरूरत है माइक वाइक बहुत कुछ आ गया. बट एक मीमर को क्या ही जरूरत है किस चीज की. सो इट्स एक्चुअली जस्ट अबाउट द होल आइडिया. इज प्राइमरीली द आइडिया. सो जस्ट हैव दैट ऐप वेयर यू हैव ऑल दीज टेम्पलेट्स. And उसके बाद it's just about practicing and experimenting. A lot of people send me their templates, their memes, and they who have not posted meme before, but they want to try. Like you were asking ना, एक once or twice a week एक बार post करके देखना चाहते हैं. So a lot of time they send me to ask for my feedback कि my meme कैसा है. To be very honest, मैं उनको नहीं बता सकता, because maybe उन लोग ने मीम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए. उनको मे बी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट उन लोग ने लाइफ में फेस किया, तो उन लोग ने उस चीज पे एक रिलेटेबल सा मीम, उनको जो रिलेटेबल था उन्होंने बना दिया. बट वो जो सिचुएशन है वो मे बी मेरे लिए ऑकवर्ड नहीं है, मेरे लिए इट्स वेरी नॉर्मल. सो आई वोंट लाफ ऑन इट, आई वोंट रिलेट टू इट. So it's like, but maybe the audience they have will relate to it. You never know. तो you can't even honestly वही जनता ही डिसाइड करेगी. Not even someone who you probably consider a meme expert or something. तुम्हारी जनता अगर वो टॉपिक पसंद कर रही है वो चीज पे, कोई मुझे आके कोडिंग पे मीम बताएगा, एसक्यूएल पे मीम बताएगा, पाइथन पे मीम बताएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा क्या है. मतलब आई डू हैव नो आइडिया. बट इफ देयर लिंक्डइन ऑडियंस इज ऑल एसडीज एंड सॉफ्टवेयर पीपल एंड कोडर्स, तो भाई बिंदास डालो, किसी को पूछो ही मत, डाल दो, सी द रिएक्शन. You never know, unless it's so much about experimenting. मैं खुद भी अभी कितना टॉपिक्स पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ चल जाते हैं, कुछ कभी कभी लगता है यार तो चला ही नहीं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. बट ठीक है, यू कैन टेक अ चांस ऑन. सी कुछ लोगों को थोड़ा ऑफकोर्स फनी लगना चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. एक एन अनफनी मीम, नो मीम इज बेटर देन एन अनफनी मीम. So unfunny meme kind of leaves a bad taste because it feels forced. तो and that is not a good thing. Memes कभी forced नहीं लगने चाहिए, like forcibly हंसाने के लिए बनाया, ऐसा मत करो. तो just if you think, even if like 40 out of 100 people, minimum 40 out of 100 people in your audience can relate to this situation, then please go ahead and post it. If you are a digital marketer and you have 100 digital marketers in your network on LinkedIn, then make a meme on Facebook ads, maybe how they मतलब something Facebook ads से related एक meme बना दो, या something maybe client bad client unrealistic client expectations when it comes to Facebook ad. 100 रुपए में sales चाहिए, well, make a meme on that, right? And I'm pretty sure कि 100 digital marketers जो है तुम्हारे नेटवर्क में, उसमें से 60-70 people will relate, because I mean ये बहुत होता है, clients ऐसे हैं कि बहुत ऐसे expectations रखते हैं. तो
It's about that. It's mostly tools. Going back, tools, resources are nothing. It's just about experimenting, knowing your audience, building that audience first, जिसमें तुम naturally जिस चीजों के बारे में बात कर सकते हो. Like, for me, I can talk less about Taimur and the maybe political stuff, like just नाम ले रहा हूँ, maybe Rahul Gandhi. टॉपिक टिपिकल जिन चीजों पे मीम्स बनता है, जिन लोगों पे मीम्स बनता है, मैं उन पे एक्चुअली इतना नहीं बना सकता, बिकॉज दैट इज नॉट माई जोन इज थोड़ा कॉर्पोरेट कॉमेडी, एंड वो थोड़ा बन गया है वैसे, इट स्ट्राइक्स मी मोर, एंड वो मेरी ऑडियंस लिंक्डइन पे मैंने बिल्ड कर लिया है, वैसे ही बैठी है उधर ऑलमोस्ट, बट वो सेम ऑडियंस मेरी ट्विटर पे नहीं है. यू माइट इवन सी मैं जो मीम्स लिंक्डइन पे डालता हूँ ट्विटर पे पोस्ट भी नहीं करता काफी बार, तो बिकॉज ट्विटर पे अलग ही, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ, तो बट yeah, I mean, that's the thing. करेक्ट बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैंने रिसोर्सेज वर्ड यूज़ करा था तो आई मेंट कि क्या क्या चैनल्स है, कहाँ कहाँ पे लोग जाके टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट एक मेरे हिसाब से, जैसे फॉर समवन हु जस्ट वांट टू ट्राई कि यार मैं कुछ ट्राई करूँ कि फ़नी बनेगा भी नहीं बनेगा, राइट. इट इज़ सिमिलर टू कि यार एक स्टैंड अप वाला बंदा जोक लिखना चाहता है, राइट, कि चलेगा नहीं चलेगा कुछ लिख के तो देखते हैं. तो सिमिलरली अगर कोई मीम बनाना चाहता है तो उसके लिए आई वाज आस्किंग कि जैसे व्हाट आई वाज सर्चिंग, मतलब मैं ढूंढ रहा था तो मेरे को तारक मेहता के कुछ मिल गए, हेरा फेरी के, बाकी चीज़ों के कुछ मिल गए, राइट. बट आई स्टिल थिंक कि वो इनफ नहीं है, इनफ एज इन कि और भी मेरे को पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने देखी भी हैं, बट वहाँ पे लिमिटेड उस टेम्पलेट्स हैं. तो उस हिसाब से आई वाज आस्किंग एंड आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट कि मीम जनरेटर इज देयर, बाकी 4-5 ऐप आप डाउनलोड कर लो. हाँ, there are some Indian memes if you search on Play Store, then you'll get 2-3 apps, and the top, just download the top 2-3 apps. And if you're talking about a template maybe which hasn't been made only, like if you have seen Golmaal and you find a particular dialogue funny and वो कहीं पे भी नहीं है, then feel free to take that out, take a screenshot while watching the movie, take it out and then you make it yourself. वो भी वो एप्स में भी तुम बना सकते हो. सो इवन दैट फ्रीडम इज देयर एंड दैट इज समथिंग पीपल शुड ट्राई. दैट इज हाउ, सी ये जो टेम्पलेट्स भी कैसे बनते हैं, ये सिंपल ना, समवन टेकिंग अ चांस, थिंकिंग दैट मे बी ये डायलॉग रिलेटेबल हो सकता है, या इस पे स्पेशली अगर हम इस पे एक बहुत मस्त सा फिटिंग सा सिचुएशन जोड़ दे, एंड देन पीपल खुद और सिचुएशन सोच के टेम्पलेट को पॉपुलर बना देंगे. तो इट्स वही ह्यूमन जजमेंट, वही सेम. So, but most of it is human judgment. There are no tools, there are no predictions, no algorithms, nothing. एंड आई थिंक जो टेम्पलेट होता है वो बस टेम्पलेट इसलिए उसको नाम दे दिया गया टेम्पलेट, क्योंकि वो ज़्यादा सिचुएशन में लोग रिलेट कर सकते हैं और कुछ नहीं है. बाकी चीज़ें शायद आप कम सिचुएशंस में रिलेट कर सकते हो. एज सिंपल एज दैट. True. बिल्कुल. Correct. So Pranjal, we'll close this podcast with one last question. This is the question I ask every guest on this podcast. And ये थोड़ा मीमर साइड से आपको बाहर आके इसका आंसर देना पड़ेगा. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच आई आस्क एवरीवन. दैट इज, व्हाट इज द वन लाइफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू एनीवन हु इज वाचिंग दिस? सोचना Life पड़ रहा advice है. के लिए तो मेरे नहीं यार, I'll say something, I'll say something from personal experience, that I know a lot. So when I talk about my personal journey on LinkedIn, I know a lot of people like me जो लोग engineering कर रहे हैं मे बी फिलहाल, और करेंगे मे बी समथिंग लाइक दैट, एंड देन नो इनसाइड कि उनको आगे कुछ और ही करना है. तो sometimes, so I feel like there are many stages in life, where you need to make big decisions. You make a big decision after maybe 10th standard for the first time in your life. Then you have to make something after 12th standard. Maybe तुम कौन सा bachelor degree करोगे. And then अगर तुमने bachelor कुछ कर लिया and करते करते you realize you're good in something else, then you need to make a decision before doing masters maybe. और अगर तुम B.Tech के बाद job करने वाले हो तो कैसा job करो. There are these chances. So don't ज़्यादा late मत करो. That is the only advice. So from my personal experience, if I had been sentimental about the fact कि मैंने 5 साल M.Tech में डाले, and I should at least give, मतलब attempt तो करूँ, engineering job try तो करता हूँ at least, but मैंने वो sentiment में आया ही नहीं. मैं I just knew what I like to do, and personally I wish I had done BMM instead of engineering, because वो बहुत मेरे लिए fit बैठता career में, but वो I didn't repeat that mistake again. Okay, so that's the thing. That's the only thing कि तुमको you'll get chances to do what you really want, but don't leave it for too late.
because later it becomes really hard to switch, because job industry is very unforgiving, and I mean, people have unrealistic expectations. It's not even your fault at times, because I mean, simple सी बात है, even if someone does a 2 year 2 साल के लिए engineering job, and then they want to switch to something like marketing, and they're good at it, they can show proof कि भाई हम marketing में अच्छे हैं, but still that recruiter will come and say अरे but तुम तो 2 साल engineering job कर रहे थे, फिर तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, और why should we pay you this much because तुम तो एक completely switch कर रहे हो, and something like this they'll pick up, right, even if they're good at it. So this industry is unforgiving. So जितना तुम the earlier you realize, the earlier you take these risks, and it's the better. The more you बोलते हैं ना, the more you fail, the more number of times you fail, तो the better you realize कि मुझे actually क्या करना है. एब्सोल्युटली. एंड इसमें मैं छोटा सा अपना पार्ट ऐड करूँगा. सो आई जस्ट ग्रेजुएटेड लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक लिटरली. तो अभी 2020 में मेरा ग्रेजुएशन होना था, जो 2020 के अंत तक आता गया बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. एंड आई थिंक मतलब आई डिडेंट ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब. मेरे को पता था कि यार मेरे को नौकरी करनी नहीं है इनिशियली. मेरे को था कि अपना ही मेरे को करना है, वट एवर आई एम डूइंग, राइट. सो यहाँ से मतलब माई पड़ोस वाली आंटी, उनको अभी भी लगता है कि घर पे बैठा पता नहीं क्या कर रहा है, राइट. तो मैंने उनसे सर ही मारना खत्म कर दिया कि मैंने कहा इनको बताओ, मेरे रिश्तेदारों को ही नहीं पता है कर रहा है. मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, डजंट मैटर. मैंने कहा छोड़ो इस चीज़ को, राइट, क्योंकि मेरे को पता है अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ. सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक आपको माइंडसेट होना चाहिए क्लियर कि यार मेरे को करना क्या है. यू शुडंट बी फोर्सिंग योरसेल्फ कि यार नौकरी चाहिए क्योंकि सब लोग प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम सेइंग दिस. कहीं ना कहीं मेरे को भी हल्का सा फोमो हिट हुआ था बीच में, जब सब लोग प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, कंपनीज आ रही थी, लोगों की प्लेसमेंट लग रही थी, राइट. एंड उस टाइम पे आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई लाइफ. फॉर्चुनेटली मतलब उस टाइम पे एक रेफरल मैंने किसी से मांगा भी था, नहीं दिया. आई एम सो थैंकफुल टू हिम, ठीक. और उसके बाद जब वो फाइनल रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ भाई अब तो सर, मतलब एक कॉलेज का जो सर पे हाथ होता है आपके, जैसे बोलते हैं कि बाप का सर पे हाथ होता है, जैसे मेरे हिसाब से कॉलेज का भी सर पे हाथ रहता है आपके. तो जब तक कॉलेज में हो तब तक ठीक है, उसके बाद आके आप एक सड़क पे आ गए. तो जब वो मेरे को हिट हुआ ना, मेरे को पता चल गया कि यार क्या करना. एंड थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी एक्चुअली इन अ मंथ और टू, राइट. अभी आई एम इन अ मच बेटर प्लेस. बट वो चीज़ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि यार सब लोग कर रहे हैं. यू हैव टाइम टू फिगर इट आउट. यार मिल जाएगी बाद में भी, इतना लोड नहीं है. इफ यू हैव द राइट स्किल्स, इफ यू हैव द राइट नेटवर्क, if you've been struggling, if you've been hustling, not struggling, if you've been hustling for the last 4 years or 3 years, whatever your degree is, कुछ ना कुछ कर ही लोगे यार, इतना नहीं है. there is one thing I used to say. एक बंदे ने आज मेरे को याद दिलाया, उसने मेरे एक ट्वीट को लेके उसने मतलब रीट्वीट करा कोट करके कि आई रिमेंबर 20 मिनट का कॉल हुआ था हमारा, उसमें आपने बोला था यू माइट हैव सीन दैट, आई नो, वो टेड टॉक वाले के साथ उसने रिलेट करा कि यार इतना तो है कॉन्फिडेंस और स्किल्स हैं कि सड़क पे भी आ गए ना कल को तो वहाँ से उठ के कुछ कर लेंगे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वर्किंग विद दिस माइंड सेट ओनली कि मेरे को पता है कि इफ एवरी थिंग वट एवर आई एम डूइंग कॉन्टेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, अगर सब बंद हो जाते हैं ना तो यार एक एवरेज जिंदगी तो जी लेंगे. और एवरेज जीनी है तो फिर वो तो पता ही है जी लेंगे, तो उसको तो बाद में देखते हैं ना, वो तो ऑप्शन है ही नहीं. अभी कुछ थ्राइव करते हैं, काय को सर्वाइव करना, एज सिंपल एज दैट. एग्जैक्टली. इवन मैंने भी कुछ पढ़ा था, पता है कि ये जो दोज हु मतलब, सो every time a batch graduates, so there are some section of students of course who go for placements, right, and it's almost like, I mean, it's handed to them, and मतलब थोड़ा of course crack करो interview and whatever, but ठीक है, I mean that is the promise your college gives, that is why you essentially paid them money and whatever. But then there is that section of students who probably don't want to do engineering or something else, I don't know, they actually वही रास्ते पे आते हैं and वहाँ से अपने स्किल पे वो लोग जॉब ढूंढ के लाते हैं. So that's the thing. So even those जो प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं और जाके खुद का जॉब खुद ही ढूंढ के आते हैं विदाउट एनीथिंग, कुछ भी उनके सिर पे हाथ नहीं है. There is no one to really put a referral also, nothing like that, especially if they're changing industries. So it's something I am also very personally, मैं मतलब I like about myself कि how my dad is in pharma and वो तो अलग ही इंडस्ट्री है पूरा. मैं कर रहा था इंजीनियरिंग तो अलग ही हो गया, और मैं चला गया कहाँ पे कंटेंट में. सो देयर इज लिटरली नो वन हु कुड हैव हेल्प मी आउट इन टर्म्स ऑफ फैमिली और एनीथिंग लाइक दैट. वो पूरा स्किल है, बस एक है कि भाई मैं लिख सकता हूँ, और एक कंपनी में जाके लिख के दिखा दिया, उनको पसंद आ गया, एंड थिंग्स जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग.
एज सिंपल एज बट इट्स अबाउट दैट सेल्फ बिलीफ एज सिंपल कि यार बहुत लोग आके ना बोलेंगे, रिक्रूटर्स आके बोलेंगे यू आर नॉट गुड इनफ, काफी बोलेंगे, बट you know you just always need to understand they're saying it for a reason, because maybe they want to pay you less so that you know you feel like you're not good enough, मेरे को कोई दूसरा कंपनी लेगा नहीं, okay let me accept this. काफी चीजें होती है, so काफी I mean it's वही like it's very unforgiving. So the one thing you can do is you know believing in yourself is not a choice, बस as simple as that. You just have to. वही तो करते रहना है. एंड इस केस में मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट भी क्या मतलब सिचुएशन ऐसा हो गया था कॉलेज के एंड तक आते आते आई हैड आई थिंक मल्टीपल ऑफर्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट हाँ 4-5 कंपनीज के मेरे पास ऑफर्स थे एंड आई वाज इन अ पोजीशन कि मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि यार मेरे को अभी नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नाउ लाइक यूर टॉकिंग अबाउट कि मैं कंपनी के पास गया, मैंने उनको लिख के दिया कि दिस इज़ द राइट अप, उनको पसंद आ गया. सो ऐसे ही नहीं आया यार, वो 4 साल का जो आपका पीछे अपनी साइड हसल्स थे या चीज़ें ट्राई करी थी वो वहाँ से आया था. इनफैक्ट जो मेरे को जॉब ऑफर्स लास्ट में सामने से आए वो इसलिए आए थे क्योंकि 4 साल उन्होंने मेरे को देखा है मैंने क्या करा है, या फिर नहीं भी देखा तो उनको पता चला है कहीं ना कहीं से, राइट. तो ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज़ थी कहीं ना कहीं एक पे बैक कर रही है. सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप ऐसे उठ के चले गए मुंह उठा के कि 4 साल बाद कुछ नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग तो हो गया अब क्या करें तो चलो जाते हैं. तो दिस नॉट हाउ इट वर्क्स आई थिंक. यार अभी जैसे यार टुडे मेरे कॉलेज के जो अभी स्टूडेंट्स हैं सेम बायोटेक, अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियलाइज्ड राइट कि सी बिकॉज इंडिया में यू कम अंडर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रेशर एंड यू जस्ट यू नो तुम इंजीनियरिंग में घुस ही जाते हो राइट समहाउ. तो अ लॉट ऑफ पीपल अभी जैसे मेरे जूनियर्स I mean again don't want to brag but I feel nice that I have done something different and they look at me as someone जो कर पाया, कॉलेज से निकल के अलग ही टेंजेंट पे चला गया and actually कुछ तो कर रहा है. High five. So it's nice to be someone who they can. I mean, I am also looking up to someone, and they can also look up to me. कि okay, इसने कुछ अलग किया. It gives us hope as well. And they ask me, and I really like to reply and help them out. मैं तो सीधा voice note में बता ही देता हूँ कि मैंने personally क्या क्या किया था. And that was कि second year, third year से ही side hustle शुरू कर दी. And did it out of fun, out of enjoyment, did not expect money, did not expect any of this. बाद में समझ आ रहा कि उसका payback मिलने लगा where even if I had a totally different degree, totally different background, whatever it was, but then मेरा काम बोल रहा था. And fortunately you also need to find some maybe clients or employers जो काम को ज़्यादा देखते हैं and not a degree. You will find these people. Rare होते हैं but you will find them. And they are worth the wait, I would say. So I found and I lucked out. So that's how I got my first opportunity. ऐसे client भी मिलेंगे who will look at this client. तो I mean client तो काम ही देखे थे ना. हायरिंग जॉब वर्ल्ड में तो फिर भी काफ़ी फालतूगिरी होता है कि डिग्री देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बट फ्रीलांस वर्ल्ड में तो योर वर्क स्पीक्स द लाउडेस्ट, उसमें तो कुछ यही नहीं. आई थिंक इस पे हमारा एक पूरा अलग डिस्कशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं डीपर लेवल पे कनेक्ट कर रहा हूँ. Right, so Pranjal, we'll close this podcast with this. Thank you so much for your time. I really enjoyed having this conversation about meme marketing, meme economy. Meme economy तो मैंने सोचा ही नहीं था कि we'll be having a discussion, but I absolutely loved it. Thank you so much for your time. Thank you for being on the show. Pleasure, my pleasure. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा and I love talking. Like it didn't feel like scripted. It was not scripted anyways. Yes. But you know it was very organic. We talk like we know each other काफी पहले से, which is very nice. So that's the best. I mean मुझे it was a nice conversation यार. Forget the technicalities, but बहुत अच्छा लगा बात करके. Thank you so much. Thank you, Pranjal. And in case if you want to know more about Pranjal, go to the description. You will find all of his links. मेरा भी देख ही लेना. Go and follow me on Instagram, Twitter, LinkedIn, whatever platform. सारे नीचे डाल दे और फिर साथ साथ मेरा भी देख ही लेना यार एक बार जाके. Tap on that subscribe button. वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो. शेयर वर्दी कंटेंट बनाने की कोशिश में ही ये हसल चल रहा है पूरा. So again, thank you so much, Pranjal, and we'll close this. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye, नमस्कार, take care.